uh, our departments is giving the thanks to all of you to came so that you people came here and gives and share some knowledge along with our staff, residents, faculties, our staffs and media persons. I thank you all so that without all of you this is not possible to carry on the symposium. Thank you. Well, every individual is considered different. Even homeopathy considers that. They look at the personality, the taste, the anger, the emotions, and then decide the drug. Unfortunately, the so-called allopathic medicine, the modern medicine which you're all practicing, has never differentiated one individual from the other. If you give tetracycline, you give it to everybody. You give anti-tubercular treatment, it's only weight and dosage. That's all it is. No other variable has ever been introduced. So that's what I mentioned as one drug for all. We think of a broad population, patient population rather than an individual. What happens in the population, we translate into a single human being. All these clinical trials which we are doing, we look at a population across the world and then say it works in 10,000 people. Therefore, it should work for this individual. Will it work or not? We never think about it. So, this is what the problem is. Into the concept of the personalized medicine. Tailor-made medicine, a particular dress which fits me doesn't fit another person who's sitting there. So it is very personal, very tailor-made. For that, we need to understand the characteristics of the individual in various, we have to look at the diet, we have to look at the gender, we have to look at the environmental conditions, and now this pharmacogenomics or the genetics. So it is well known now that there is a genetic basis for the drug responses which we see. I was amazed. In 1973, I went on a Commonwealth Fellowship to UK, London and Newcastle. And I used to see patients with epilepsy taking 600 milligrams of phenytoin, and nothing will happen to them. No ataxia, no nystagmus, nothing at all. Whereas in India, I was working in Safdarjung Hospital in Delhi at that time, sometimes even 300 milligrams, they will start getting a little cellular ataxia, gingival hypertrophy, we don't worry. So 100 milligrams of phenytoin and patients were controlled, with free of seizures. Now today we think differently, we are not doing therapeutic levels in those years, but then they were controlled, they were seizure free. So what was the thing, Now we will have an explanation. कुदरत का करे आदर इंसान वही है, झरने सी हो जो निर्मल मुस्कान वही है। दौलत से नहीं मिलता सुख सुकून कहीं भी, सेहत अगर अच्छी है तो धनवान वही है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सेहत और जिंदगी की चर्चा करेंगे आपके साथ। और आज का विषय जो है वो है एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी। मिर्गी एक ऐसा विषय बन गया है हमारे समाज में जिसे हम एक शापित बीमारी के तौर पे देखते हैं, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं जीबी पंत हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है एपिलेप्सी, जिसपे ये सिंपोजियम भी इसी विषय पे आयोजित किया गया है। हम जानना चाहेंगे कि मिर्गी क्या है। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन में एबनॉर्मल तरंगें उठती हैं, और जैसे आपने इलेक्ट्रिक जो हमारी वायर्स होती हैं घरों में चलती हैं, उसमें देखा होगा शॉर्ट सर्किट हो जाती है और उसकी वजह से कई बार पूरे कमरे की लाइट चली जाती है। उसी तरह होता क्या है कि जो ब्रेन में सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ, वो एक तरंगों की तरह ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन कई बार बिकॉज ऑफ सम एबनॉर्मल डिस्चार्जेज जब तरंगें ज़्यादा उठने लगती हैं तो उसकी वजह से एपिलेप्सी नामक बीमारी होती है। और ऐसा हो सकता है कि ये तरंगें उठने के कारण जन्मजात हों, या कई बार ब्रेन में होने वाले कई इन्फेक्शन जैसे न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, ट्यूबरकुलोमा, या कई बार ब्रेन ट्यूमर में भी एपिलेप्सी हो सकता है। जी, जैसा कि आपने बताया कि ये एक मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है।
तो इसे किस तरीके से आप लोग लेते हैं? क्या कभी कभी जैसे होता है कि कभी आदमी को एक बेहोशी सी आ गई या कभी छोटा सा झटका लग गया, तो इसे भी मिर्गी की तरह ही माना जाए या फिर कुछ और? अगर हम इसे साइंटिफिक भाषा में देखें तो एपिलेप्सी एक मेंटल डिसऑर्डर कम एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ज़्यादा है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इसलिए है क्योंकि आमतौर पर मेंटल डिसऑर्डर्स में ब्रेन में कोई किसी तरह की खामी नहीं पाई जाती, सिर्फ कैटेकोलामिन्स और डिफरेंट टाइप्स के न्यूरोनल केमिकल्स में इम्बैलेंस की वजह से मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। बट जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो यूजुअली ऑर्गेनिक होते हैं, यानी उसमें कुछ कारण होता है। अब कारण ये भी हो सकता है कि सिर्फ एबनॉर्मल डिस्चार्जेज उठें, या कारण ये भी हो सकता है कि एबनॉर्मल डिस्चार्जेज होने का कुछ और कारण हो। जैसा अभी हमने आपको बताया कि सीएनएस इन्फेक्शन जैसे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, ट्यूबरक्लोमा, टॉक्सोप्लाज्मा, या कई बार और कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, या कई बार लकवा होने के बाद भी सीजर हो सकता है। जी। और इसके अगर लक्षण की बात करें, क्योंकि ये बीमारी अपने आप में गंभीर है और इसके काफ़ी दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, तो अगर प्रारंभिक लक्षण की बात करें तो कैसे लक्षण ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं? एपिलेप्सी कई प्रकार के होते हैं, बट आमतौर पर हम उसे दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी सीजर और एक सेकेंडरी सीजर। प्राइमरी सीजर और सेकेंडरी सीजर में जो मूलभूत अंतर ये होता है कि प्राइमरी सीजर का कारण यूजुअली एमआरआई वगैरह करने पे नहीं प्राप्त होता है। उसके लिए हमें एक विशेष तरह की जांच जिसे हम ईईजी करते हैं उससे मालूम पड़ता है। तो प्राइमरी सीजर यूजुअली इडियोपैथिक जीटीसीएस, मायोक्लोनिक जर्क, एब्सेंस सीजर इस तरह से होते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी सीजर होता है उसे हम दो मेन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी सीजर लीडिंग टू सम लॉस ऑफ सेंसोरियम विदाउट लॉस ऑफ सेंसोरियम। तो अगर सेकेंडरी सीजर में लॉस ऑफ सेंसोरियम नहीं होता है तो उसे हम पार्शियल सीजर कहते हैं। और कई बार पार्शियल सीजर की शुरुआत बॉडी के एक अंग से होती है और वो विद इन सेकेंड्स पूरे शरीर में आ जाती है, और कई बार वो सिर्फ उसी अंग में रहती है और वहीं से समाप्त हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि पार्शियल सीजर की शुरुआत एक अंग से होती है, पूरे शरीर में आती है और उसके साथ मरीज बेहोश भी हो जाता है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर कहते हैं। तो आमतौर पर हिंदुस्तान में जो एडल्ट में एपिलेप्सी होती है वो पार्शियल या पार्शियल विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन सीजर होता है। और इसमें कई बार होता है कि मरीज को पता चल जाता है जैसे ही हाथ में या पैरों में झंझनाहट या ट्विचिंग या फेस में ट्विचिंग चालू होती है, उसे पता चल जाता है कि हो सकता है कि दौरा आने वाला हो। जी। ऐसे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर दौरा ऐसे पेशेंट्स को आने वाला है या फिर दौरा आ जाता है तो आसपास जो लोग फैमिली मेंबर्स हैं उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले उन्हें मरीज को करवट लिटाना चाहिए और इस बात का इंतजार करना चाहिए कि क्या मरीज को दौरा बंद हो जाता है या फिर पूरे शरीर में फैलता है। अगर दौरा 5 मिनट के अंदर बंद हो जाता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, और मोर देन 90% केसेज में होता भी यही है कि दौरा 5 मिनट के अंदर बंद हो जाता है। कई बार कुछ लोग गलतियां कर बैठते हैं, जैसे पास में खड़ा हुआ व्यक्ति दौरे के मरीज को जब दौरा आ रहा होता है तो जूता सुंघाने की कोशिश करता है, मुंह में पानी डालने की कोशिश करता है या मुंह में चम्मच डालने की कोशिश करता है, और अगर उसकी दांतें बैठ जाती हैं तो उन्हें सेपरेट करने की कोशिश करता है। इस तरह की गतिविधियों को करने से मरीज को फायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है। जैसे दांत टूट सकता है, या अगर मुंह में पानी डालें और मरीज उस समय बेहोश है तो पानी खाने की नली के बजाय सांस की नली में जा सकती है और उससे मरीज को निमोनिया हो सकता है। तो जूता सुंघाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर मरीज के दौरे 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाते हैं तो दौरे खत्म होने के बाद उसे पास के चिकित्सालय में ले जाएं और डॉक्टर की सहमति से जैसा चिकित्सक कहते हैं उस तरह का इलाज करें। और अगर दौरा 5 मिनट से ज़्यादा चलता है तो यह बहुत ज़रूरी है कि हम या तो चिकित्सक को घर पे बुलाएं या एम्बुलेंस या किसी अन्य माध्यम से जो पास का निकट का चिकित्सालय है वहाँ लेकर जाएं। और ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे विद इन मिनट्स दौरे पे काबू पाया जा सकता है।
बहुत खुशी की बात है कि ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध है जिससे कि दौरों पे भी नियंत्रण पाया जा सकता है और इस बीमारी पे भी नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है डॉक्टर साहब, और दोस्तों आपसे भी कहना चाहेंगे कि हम दवा कराने की बजाय झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं, इसे एक शाप समझते हैं, दैवी प्रकोप समझते हैं। डॉक्टर साहब, इसी विषय पे आपके द्वारा एक मैसेज चाहेंगे अपने दोस्तों के लिए कि जो झाड़ फूंक करवाने के लिए लोग जाते हैं और इसे शाप समझते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? पुराने समय में जब दवा नहीं थी और इलाज के तरीके उपलब्ध नहीं थे, तो लोगों में ऐसी मान्यता थी कि दौरा एक देवी का प्रकोप है या भगवान का दिया हुआ शाप है जिससे हमें पूरी जिंदगी लड़ाई करना है। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में यह मरीज के साथ नाइंसाफी होगी कि हम उसे दवा से और इलाज से वंचित रखें और झाड़ फूक करके व्यर्थ का समय बर्बाद करें। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे, अगर हमारे परिवार में या आसपास में दौरे का कोई मरीज हो तो हम उसके इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह माने और मोर देन 95% 99% पेशेंट्स एक सिंगल दवा से पूरी जिंदगी के लिए दौरे से विमुक्त हो सकता है और दौरे से वो बिल्कुल स्वतंत्र हो सकता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और हमें लगता है कि जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके माध्यम से उनके आसपास भी ये जागरूकता फैलेगी। डॉक्टर साहब, जो दौरे पड़ते हैं, झटके आते हैं, इससे मरीज को मस्तिष्क को कोई हानि पहुंचती है या फिर जो दवाएं लेते हैं उससे कोई साइड इफेक्ट होता है? एक दौरा मरीज में अगर मिनट्स के लिए भी होता है तो उस दौरान ब्रेन की ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई या तो रुक जाती है या कम हो जाती है। तो प्रत्येक दौरा मरीज में कुछ न कुछ हानि छोड़कर जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक दौरा भी अगर मरीज को आता है तो उसे रोकना और उसको उस पर काबू पाना और उसका इलाज करना बहुत निहायत जरूरी है ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। और जहाँ तक दवाओं के साइड इफेक्ट की बात है, हर दवा का कुछ न कुछ साइड इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन मिर्गी या एपिलेप्सी से लड़ने वाली जो दवाइयाँ हैं आज के समय में जो उपलब्ध हैं, उनके साइड इफेक्ट बिल्कुल मिनिमल हैं या तो नहीं के बराबर हैं। और आपके चिकित्सक इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि ऐसे क्या उपाय किए जाएं ताकि दवा का साइड इफेक्ट या दवा के दुष्प्रभाव न पड़े और हमें दौरे से पूरी तरह आज़ादी मिल सके। डॉक्टर साहब, दवाओं की अगर बात करें तो दवाएं किस सीक्वेंस में लेनी पड़ती मरीज को? क्या लाइफ लॉन्ग दवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है? अभी हमने आपको बताया कि एपिलेप्सी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सीजर एंड सेकेंडरी सीजर। जो प्राइमरी सीजर यूजुअली बच्चों में पाया जाता है और उसमें दौरे की जो दवाइयाँ होती हैं, मोर देन 70 to 80% केसेज में जब बच्चा 12 या 18 साल का हो जाता है तो दवाओं को हम धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। कुछ बहुत ही 5 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें दवाओं को लंबे समय तक लेना पड़ सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो होते हैं वो दवा 2 से 3 साल के अंदर या जब वो उनकी उम्र 12 से 18 साल, जब उनका ब्रेन मैच्योर हो जाता है तो उनकी दवाइयाँ बंद कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी सीजर होता है, जो कारण की वजह से, जैसे ब्रेन में इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस इन्फेक्शन की वजह से होता है, उसमें आमतौर पर 1 से 2 साल तक दवा की जरूरत पड़ती है। और जैसे मान लीजिए ब्रेन की ट्यूबरकुलोसिस होती है तो अगर हम टीबी का इलाज करें और साथ में दौरे की दवा लें तो 12 से 18 महीने में टीबी की दवा और दौरे की दवा दोनों बंद हो जाती है। तो आमतौर पर हम ये मान के चल सकते हैं कि सेकेंडरी सीजर के दौरों के जो मरीज हैं उनका इलाज 1 से 3 साल और प्राइमरी सीजर के मरीजों का इलाज जब तक वो 12 से 18 साल तक हों तब तक, और मोर देन 90% 95% पेशेंट्स में 2 से 3 साल के अंदर दवा को बंद किया जा सकता है। यानी कि दवाओं को बंद भी किया जा सकता है अगर स्थिति नियंत्रण में है पूरी तरह से। दवाओं को लेकर के कुछ भ्रांतियां भी हैं कि दवाएं अगर लेना भूल गए कभी तो ऐसे में फिर क्या करें? क्या 2 दिन की दवा एक साथ ले लें या फिर डॉक्टर से मिलें? तो ऐसे में एक जानकारी बहुत ज़रूरी है आपके माध्यम से कि दवाएं अगर छूट गई तो फिर क्या करना चाहिए? आजकल कई इस तरह के प्रिपरेशन अवेलेबल हैं कि जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सुबह 6 बजे चले जाते हैं, 2, 3, 4 बजे घर आते हैं, सो के उठे बिना कुछ खाए स्कूल चले गए, तो इस भाग दौड़ में कई बार ऐसा होता है कि दवा छूट जाती है।
तो आजकल कई ऐसे प्रिपरेशन अवेलेबल है मार्केट में जिसमें हम एक बार ही दवा दे सकते हैं। जैसे शाम के वक्त